one and all. I welcome you to today's class on 8th of July 2021. As all of you know, yesterday we completed the reading and explanation part of lesson number 3. Lesson number 3. That was the name of the lesson is Robinson Crusoe. In that we just came to know about a man who was alone on an island and what happened with him. You just read all the incidents and we found out that something strange happened with that man. Is it correct? Is it correct, Pandey brothers? Yes. Good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग करके आप क्लास से निकल जाओ. जस्ट लीव द क्लास. Good morning, ma'am. वीरेंद्र सिंह अपना माइक ऑन करो. And no need to wish good morning. Once you join the class, you will just do namaskar like this. वो भी बिना बोले. Same song I have to sing every day. Now, once we have finished the lesson, all of you know that. Once we have finished the lesson, so all of you know that what are we supposed to do now? Pandey brothers, am I audible? Yes, ma'am. Yes. कुछ स्पेशल बच्चे उनको आवाज नहीं जाती है, उन्हीं को सारा प्रॉब्लम एक या दो बच्चों को ही होता है. ऑलमोस्ट राइट नाउ आई हैव 35 स्टूडेंट्स इन माय क्लास. अभी और ज्वाइन करेंगे. yesterday the strength was good. 50, it was 50. Okay, but the today okay, it has raised to 39. Yeah, all the children are joining now. They are keep on joining. Okay, so just give me a नहीं नेटवर्क चला गया था तो मैं पावर रिकनेक्ट. नेटवर्क मैम ने कैमरा बंद रखा है. आप लोग को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है या डायलॉग समझ में आता है? मैंने क्या बोला था बंद करने से पहले कि गिव मी अ मिनट. कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया था, मैं उसको देख रही थी. तो डोंट बी ओवर स्मार्ट. कौन बोला ये कि मैडम आपने कैमरा बंद रखा था? हु सेड दिस? टेल मी योर नेम. अब नाम बताने में क्या शर्म आ रही, बताओ ना. वो पांडे ब्रदर्स बैठे हैं, प्रथमेश बैठा है, वेदांत बैठा है. कोई स्पेशल एक बच्चे को मैडम आपने कैमरा बंद कर. सबको पता है भाई, मैं बोल के गई हूं कि मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट का मतलब क्या होता है. प्रथमेश मैंने बोला था ना या नहीं बोला था? Okay, so yesterday we finished the lesson. As all of you know, today we have to start the exercise part of that. So first of all, what we are supposed to do, this Ekta will tell us. Ekta, what are we supposed to do today? Ekta? New words, meanings. Yes, very good. Question answers. So first of all, I am taking the new words of the lesson. Write the heading, new words. First of all, you should mention the date. Whenever you are doing any work, ये मैं हर रोज बोलती हूँ. First of all, you should write the date. Today's date is 8th of July. Then you will write lesson. Lesson number 3. Lesson number 3. Robinson Crusoe also you can write. Robinson Crusoe. And then you will write new words. New words I will write one time, but you people are supposed to write how many times? Astha. 3 times. Very good. 3 times you are supposed to write. अभी आप लोग एक बार लिख के रख लीजिए. Later on you can do 2 more times. So the first word is
सरप्राइज्ड उसी के नियर वाला वर्ड है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड। श्योर मतलब किसी वाटर बॉडी का किनारा। श्योर इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, सोचना। इमेजिनेशन। कासल, ऑलरेडी यू नो द मीनिंग्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग द लेसन, मैंने आपको बताया था। कंफ्यूज्ड, नाउ आई विल राइट दिस साइड ताकि आपको नजर आए। चेज्ड, लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी, लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है, आप लोग स्नैक एंड लैडर भी खेलते हैं। चेज्ड, लैडर। सैवेज, SAVAGE, सैवेज। मेनलैंड, मेनलैंड। वॉन्डर्ड, घूमना इधर उधर, वॉन्डर्ड। रियलाइज्ड, realized. And if you tell me so that I can rub word number 1 to 6, can I rub them? Yes. Yes, ma'am. If you have completed, I can rub them. Yes, ma'am. Bhavesh, have you written these words? First line. Yes, Okay. Riddhi, where is Riddhi? Ma'am, I am here. वीरेंद्र, तुम्हारा माइक ऑन क्यों हुआ है? वीरेंद्र, माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन रखो अपना ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं। हाँ, तुम मुझे दिखने चाहिए हो। अब जब मैं पूछूंगी कि हो गया तो आपको ऐसे थम्स अप करना है, इसका मतलब समझ जाऊंगी हो गया। समझ में आया वीरेंद्र? हाँ, माइक बार ऑन करने की जरूरत नहीं है बार बार। Now 1 to 6 I am rubbing. थर्टीन पे है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन लेना। प्रोटेक्शन। इन्वेस्टिगेट, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे क्राइम पेट्रोल में आता है, CID में आता है, कैसे कुछ हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करने आती है। इन्वेस्टिगेट, लास्ट में GATE, गेट, इन्वेस्टिगेट। फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी। बोल्डर, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। बोल्ड मतलब बहादुर। अरे वो लड़की तो बहुत बोल्ड है, किधर भी अकेले चली जाती है, उसका कंपैरेटिव डिग्री बोल्डर और सुपरलेटिव बोल्डेस्ट। एग्जामिन, एग्जामिन करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। Now shall I rub this side? Riddhi, have you completed this side? 7 to 12. Show me your thumbs up. Okay. Okay. Virender, have you done? Virender? Yes, very good. अब वीरेंद्र को समझ में आ गया कैसे रिप्लाई करना है, शाबाश। So already I have written 17 words. Only 3 words are left. Total 20 words are there. BEACH, बीच का मतलब होता है समंदर के किनारे जो जगह रहती है उसको बीच बोलते हैं। जैसे जुहू बीच मुंबई में फेमस है
है ना, बीच। अंडमान में एक रोज बीच था, एक एक कोई अलग सा नाम था, मैं ना उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, किसी उस पे था, शेल पे उसका नाम था। तो बीच, आइलैंड, ऑलरेडी आइलैंड हम कर चुके हैं, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एस इज साइलेंट, बीच, आइलैंड एंड इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब बस्ती बस चुकी है, लोग रहने लग गए हैं। That's all for the new words. 20 new words are there. 20 new words are there. One time आप लोग अभी लिख लीजिए. After the class, 2 more time you are supposed to write. Deshna has completed. All 20 words Deshna has completed. इसका मतलब ये नहीं कि हमें देशना से कंपटीशन करना है, गंदी गंदी राइटिंग में करना है. राइटिंग अच्छी लिखिएगा, जमा जमा के. एक ही बार लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखो. 2 बार बाद में लिखना. Arshika has completed. Very good. Mohit Amrawat has completed. चलिए आप कंप्लीट करिए, तब तक मैं, आप देखो बच्चे बिना बोले भी मुझे बता पा रहे हैं कि मैडम हम, बिना बोले भी मुझे बता पा रहे हैं. अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. लेट मी टेक द अटेंडेंस. इतनी देर में आप कर लीजिए थोड़ा, जिनका नहीं हुआ है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो अटेंडेंस ओवर. अभी जो बच्चा लेट ज्वाइन करेगा, बाद में कोई ज्वाइन करे तो बता देना मुझे. अभी तक के बच्चों की अटेंडेंस मैंने ले ली है, और वैसे लेट कमर्स को मैं एब्सेंट ही मार्क करने वाली हूँ. So last time I am asking you, shall I rub the board now? Everybody has finished the new words one time. Very good. अब ये काम, ये छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं हर रोज बोलूं कि स्पेलिंग लर्न करने हैं. ये खाली कॉपी में लिखने के लिए नहीं लिखवा है. इनको आपको लर्न करना है, इनको आपको याद करना है, इनको आपको 2 टाइम्स और लिखना है, और इसके अलावा आपको रजिस्टर में भी करना है. जिन लोगों ने रजिस्टर बना रखा है, इसको अपनी कॉपी में लिखने के बाद 1 मोर टाइम आप रजिस्टर में भी लिखेंगे. Clear? Is that clear? Is that clear? Yes. Okay. Virender completed? Yes. Everyone has completed? Vedant? Okay. ये कौन लिख रहा है? Prisha, have you completed? Yes. Okay. So I am rubbing it now. New words over. Total 20 new words. बहुत easy. इसमें से कुछ words ऐसे जो आपको पहले से ही आते थे. But still I have written ताकि आपका revision हो जाए. Now we will take the meaning. So all of you know the practice. Meaning हम कैसे करेंगे? जो 5 meanings are given at the end of your lesson. 5 meanings. पहले आप ये लिख लीजिए. न्यू पेज पे ऊपर हेडिंग डालो मीनिंग्स. पहले ये 5 मीनिंग्स आप कॉपी में लिखेंगे. स्टार्ट राइटिंग नाउ. मैम आप जब अटेंडेंस ले रही थी तभी मैंने बुक में से 5 मीनिंग्स लिख लिए थे. गुड. ओके, तो अब मैं मेरे साथ साथ आप लिख सकती हैं.
6th number I have written shore, shore, shore. Don't get confused between sure, sure. Are you sure you are coming to school tomorrow? No madam, we are not sure. The government will order and then we'll come to school. So वो वाला shore अलग है, sure, shore. ये है shore. Shore मतलब the land along the edge. Edge का मतलब होता है किनारा, कोना, कॉर्नर. Edge of a river or sea. समंदर या नदी का जो किनारा होता है, लैंड, उसके पास, उसके आसपास जो जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड शोर. आप अंडमान जाओगे तो बहुत सारे सी शोर विजिट करोगे. सी शोर मतलब सी के किनारे, सी के जो किनारे पे जगह होती है वो सी शोर. अगर नदी के किनारे है तो रिवर शोर. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वर्ड. confuse, less easy to understand. जो समझने में मुश्किल हो, easy ना हो, उसमें होता है कंफ्यूज. अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूं, मैं क्या करूं. दैट इज कंफ्यूज. नंबर 8. फॉलो. चेज, चेज का मतलब फॉलो करना, क्या पकड़ने के लिए. फॉलो करने का मतलब होता है पीछा करना. लेकिन अगर आप चेज कर रहे हो, चेज कर रहे हो मतलब आप पकड़ना चाहते हो. जैसे पुलिस थीफ को कभी फॉलो नहीं करती है, पुलिस थीव्स को हमेशा चेज करती है. क्यों? क्योंकि वो थीव्स को क्या करना चाहती है, पकड़ना चाहती है. तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. फॉलो करना, जैसे मैं स्कूल में बोल रही हूँ, ओके चलो बच्चों मैं आपको आज गार्डन दिखाती हूँ, फॉलो मी, तो आप मेरे पीछे पीछे आओगे. मैं आपको स्कूल में ये नहीं बोलूंगी ओके प्रथमेश, रिद्धि, रुद्रांश, वीरेंद्र, हिमानी, प्रिशा, भावेश, चेज मी. चेज मी का मतलब तुम मुझे पकड़ लो आके. तो मैं कभी भी चेज मी नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, फॉलो मी. अंडरस्टूड? और पुलिस हमेशा थीव्स को क्या करती है, चेज करती है. इज दैट क्लियर शाश्वत एंड स्तव्य? यस, ओके. तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड, नंबर 9. Again and again I am telling you, I keep on telling you in every class, handwriting should be very nice. एक लाइन छोड़ के लिखना पड़े भले, क्योंकि आप पेन यूज कर रहे हो, 1 लाइन कॉपी में लिख रहे हो, भले आप 1 लाइन छोड़ के लिखो, लेकिन वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए. वैसे भी जो कॉपी के लास्ट में आप पेजेस बच जाएंगे, उसका हम अचार तो डालेंगे नहीं कि लास्ट में एग्जाम हो जाएंगे तो मम्मी उसका अचार डाल लेगी हम खाएंगे, वो फेंकने में वेस्ट ही जाते हैं. इसलिए 1 लाइन छोड़ के 1 लाइन अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो. 2 वर्ड्स के बीच में ऐसे गैप भी होना चाहिए. कैसल, अ लार्ज ओल्ड बिल्डिंग. एक पुरानी ओल्ड बिल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं कैसल. प्रोटेक्शन, किसी को बचाना. वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है. लोग पेड़ पे काटे जा रहे हैं, लगा नहीं रहे. और अभी कोरोना में आपने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ गई. सो हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. हम सब लोगों को कम से कम अपने जीवन में साल में 1, 2, 3 पेड़ लगाने चाहिए. और खाली पेड़ लगाने के भूल नहीं जाना है, उसकी टेक केयर भी करना है, उसको बड़ा करना है. नंबर 11 पे है इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट, a systematic इंक्वायरी. किसी भी चीज की जब सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है, ये हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेट. अ सिस्टमेटिक
Inquiry. INQUIRY. Only one is left. So Prathamesh, if I write one more here, is it visible to you? Shall I write one more? No, ma'am. Nahi. Okay. The board. Can I rub number 6 and 7? Can I rub 6 and 7? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. कौन बोला नो? मैम एकता बोली. कौन बोला? नहीं, मैंने नहीं बोला. 6 or 7, everybody has done number 6 and 7. Yes, ma'am. Prajwal, you have done. Vanshika, you have done. Yes, Vanshika has done. Slow जो लिखते हैं खास करके पहले उनसे पूछना है. Riddhi, you have done. Riddhi 6 7. Yes, Rudransh. Okay. Anshika, Vashisht, you have done. Yes, ठीक है. तो 6 और 7 I can rub. नीचे का rub नहीं कर रही हूँ. Only one is left. One meaning is left. Last one meaning number 12. 11 तक हमारा हो गया. 12 नंबर पे आएगा आइलैंड, जो हमारा फर्स्ट वर्ड था. जब लेसन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको सबसे पहले आइलैंड ही पूछा था. व्हाट इज आइलैंड? A piece of land, 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 land मतलब जमीन. A piece of land surrounded by water, जिसके चारों तरफ पानी पानी हो. That's all. ये हमारे हो गए टोटल 12 meanings. 20 new words we wrote and 12 meanings. Those who have completed on a new page, they can write the question number 1. Let's read. What made Robinson Crusoe think that the print of on the ground was a footprint? First question आप note कर सकते हैं. If you have completed this work, note down the first question from the book in your notebook. Book में देख के notebook में note करो first question. Those who have not completed, उनके लिए मैं 1 मिनट और दे रही हूँ ताकि उनका काम जिनका नहीं हुआ उनका फिनिश हो जाए. Pulkit, have you completed the meanings? Okay. Nikita, which number you are writing? 11. Okay, write it, beta. One more minute I am giving you. 11 and 12 only. 12th here. वाला आंसर
Yes, Faraz, you want to tell anything? नो मैम, गलती से हो गया था मैम. Okay. Nikita completed. Shall I rub the board, Nikita? Okay, Nikita. So Nikita has also completed. I'm rubbing the board now. Please write question number 1 from your books. बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है उसको कॉपी में नोट करिए. आंसर आई विल राइट ऑन द बोर्ड हियर. So what was the question? The question was, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? Robinson Crusoe ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो छाप बनी हुई है मिट्टी पे ये फुटप्रिंट है, ऐसा उसको क्यों लगा? तो द प्रिंट ऑफ द फुट, टोज, हिल, उसके सारे पार्ट थे, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, राइट? एम आई राइट? यस. सो heel, every part of the foot made Robinson think that the print on the ground was a footprint. क्योंकि उसका पूरा प्रिंट ऐसा लग रहा था, देखिए किसी का पांव है ये, उसमें टोज भी थे, उसमें अलग से पूरा पैर का जो शेप होता है, फुट का जो अपना फुट का जो शेप होता है वो पूरा छपा हुआ था. इससे रॉबिन्सन को लगा कि ये जरूर किसी का फुटप्रिंट है. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन डर क्यों रहा था? जब वो बुशेस और ट्रीज को देख रहा था तो वो डर क्यों रहा था? रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड, क्योंकि वाई से पूछा है. मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि क्वेश्चन जब भी वाई से पूछा जाता है तो पहले हम क्वेश्चन का पार्ट ले लेते हैं. तो रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट Robinson was afraid when he looked at the bushes and trees. Because, अब ये क्वेश्चन का पार्ट खत्म हुआ, अब मैंने लगाया बिकॉज. ट्रीज तक पूरा मैंने किस में से लिया? क्वेश्चन में से लिया. बिकॉज he मिस्टूक का मतलब मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन. सो मिस्टेक की सेकंड फॉर्म है मिस्टूक. टेक, टुक, टेकन आपको ऑलरेडी याद है. सो मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन. द बुशेस एंड द ट्रीज बिकॉज ही मिस्टूक देम टू बी
किसका स्पीकर ऑन हुआ? मैन, क्योंकि वो उनको ऐसे सोचा था कि कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, somebody is following me। उसको बुशेस को देख के ऐसा लग रहा था। अभी तो साइड दी। किसने ऑन किया? ये साइड तो दे रही हूं मैं देख रही थी स्पीकर किसका ऑन है। Yes, 2 minutes I am giving you to complete these 2 answers. Those who have completed, they can write down the question number 3. आगे क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड वेदांत, क्रिस्टीना, गुड, रुद्रांश, ओके। राइटिंग शुड बी वेरी नाइस, जल्दीबाजी के चक्कर में राइटिंग कचरा मत लिखना। ओके रिद्धि, ओके प्रिशा, ओके सचिन। सचिन पूरा काम कंप्लीट कर लेना, पहले वाला भी, किसी की कॉपी लेके। ओके सचिन, ओके मैम, वेरी गुड। सचिन को आगे आप कैसे रिस्पॉन्स करना है, शाबाश। शैल आई रब द बोर्ड नाउ एवरीवन? थम्स अप करके दिखा दो, thumbs up। Yes, everybody has done. So I am rubbing off both the question, both the answers, and now I will write the answer number 3. Question 3 है, why was Robinson Crusoe, sorry, why did Robinson pray when he saw the footprint? Robinson ने pray क्यों करी जब उसने footprint देखा? Answer 3। वापस से why से पूछा है। So Robinson prayed, pray का हो जाएगा prayed second form, when he Robinson prayed when he saw the footprint यहां तक मैंने क्वेश्चन में से ले लिया है। saw the footprint because, अब क्योंकि why से है इसलिए हमें आंसर में क्या लगाना है? because। ये हमेशा याद रखो। Robinson prayed when he saw the footprint, यहां तक क्वेश्चन में से लिया, because he was afraid and thought about a savage who would kill him। उसको लगा कि कोई सैवेज आया है जो कि मुझे मार देगा, इसलिए उसने प्रे करी। हम भी जब किसी संकट में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी ईश्वर को मानते हैं, है ना, उनको हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे इस संकट से निकाल लेना, हे भगवान मेरी रक्षा करना। करते हैं या नहीं करते हैं? यस, करते हैं। ओके, सो रॉबिन्सन प्रेड व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट बिकॉज he was afraid and thought about a savage who would kill him। उसको लगा कि कोई savage आके मुझे मार डालेगा, इसकी वजह से उसने प्रे करा। अब जो 4 क्वेश्चन है उनको पहले आप अभी राइट नाउ बुक में कर लीजिए, टिक लगा लीजिए। आफ्टर द क्लास इज ओवर
उसके बाद आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, 3 चॉइस दे रखी है, उसमें से करेक्ट जो आंसर है उसको टिक करना है। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप तीनों ऑप्शन लिखेंगे। आर यू गेटिंग मी? आप तीनों ऑप्शन लिखेंगे और जो सही आंसर है उसको टिक करेंगे। जैसा बुक में दे रखा है वैसे ही सेम आप कॉपी में भी लिखेंगे। So question number 4, choose the correct answer. Robinson ran back to his home as fast as he could because he was racing, he was afraid, he was in a hurry to go home. Pratik. Yes. Yes, ma'am. मैं इसका होगा was afraid. Yes, Robinson was afraid क्योंकि वो डरा हुआ था. He was afraid. Next question. He could not sleep because there was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland. His bed was uncomfortable. Kusum. He thought savages had come from mainland. वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। इसका मतलब लेसन आपने ध्यान से सुना भी है और पढ़ा भी है, क्योंकि उसने सोचा कि कोई सैवेज आया है, जो कि अभी अभी इस आंसर में लिखवाया भी है कि कोई सैवेज आया है जो कि मुझे मार कर खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट? It didn't look like a human footprint. It looked smaller than his. He had not come to this part of the beach in a long time. Chanchal. Yes, ma'am. He had not come to this part of the beach in the long time. Very good, Chanchal. Your answer is correct. तो उसको आप सब लोग करेक्ट कर लेंगे और बाद में later on you are supposed to write this in notebook. Last question. Where was Robinson Crusoe? On a boat, in a town, alone on an island, on an aeroplane. Ananya. alone on an ice island. Yes, अभी आपने आइस बोलने वाली थी आप, जबकि इतना बताने के बावजूद भी alone on an island. It's not Iceland, it's island. Okay. So that's all for the teaching class today. Some instruction I'll give you. बस teaching यहीं पे हमारा होता है. We will continue in next class tomorrow.